ऑलराइट, P1 P2 बाद में देख लेंगे गाइस, कोई नहीं. लेकिन वेलकम बैक टू द क्लासेस एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ. ओह, आई डिड नॉट जॉइन फ्रॉम द अदर फोन एंड इवन दो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन माय अदर फोन बैटरी इज ड्रेनिंग वेरी वेरी फास्ट. आई डोंट नो व्हाई. लेकिन चलो, लेट्स डू द क्लास एंड बाद में देख लेंगे क्या हिसाब करते हैं. लेकिन विद द अदर अकाउंट एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ. ना भाई, डोंट आस्क फॉर सच थिंग्स प्लीज. लेकिन चलो, let's start off. So, uh, okay, guys, बाद में ये बातें. लेकिन back to the classes now. So, yesterday we ended our class having this long discussion on how these input devices work. We had a discussion on all these other input devices. We discussed, what do we call it, how it does your keyboard works, how microphone works, QR code, and all that stuff. Today, we are inshallah going to be finishing all the input devices that we have we have in our course, right? So starting off with the very first thing जो कि हमने आज पढ़नी है, it is a device which almost everybody who knows a computer might be using, and it is known as something called as mouse. So it's not that mouse जो कि आप घर में या the Tom and Jerry वाला mouse. It is that mouse which you use to basically operate the pointer on the computer. So what's the pointer? Pointer is basically जब आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हो तो एक इस तरह की चीज नहीं होती, इस तरह की चीज, इसको कहते हैं पॉइंटर. ओके, दिस थिंग जिसको फिर आप किसी ऐप के ऊपर क्लिक कर देना, दिस इज ऐप, तो आप इसके ऊपर लेके जाते हैं, डबल क्लिक एंड इट ओपन्स इट. सो दिस थिंग इज बेसिकली नोन एज व्हाट? इट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ पॉइंटर और अ कर्सर. थैंक यू अहमद. यस, पॉइंटर और अ कर्सर. सही, पॉइंटर भी इसको कभी कभार बोला जाता है, लेकिन मोस्टली इट्स या कर्सर. कर्सर इज अ बेटर वर्ड बाय द वे. सो अब माउस क्या चीज है? If you guys saw that document, the email which I sent yesterday, आपको समझ आ गई होगी कि हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली एड्रेस करनी चाहिए कि यार why should we be using a mouse, right? So it's like the main purpose of a mouse is to control the on-screen pointer for selecting, dragging or clicking. So हम इसको अगर एक यहाँ पे वो कर लें कि main purpose, तो हम इसका ये कर लेंगे, it controls the pointer on the screen और कर्सर, आप दोनों यूज कर सकते हो. ओके, ऑन द स्क्रीन फॉर व्हाट पर्पसेस? फॉर ड्रैगिंग, फिर उसके बाद आप उसके बाद फॉर ओपनिंग, या फिर मतलब ओपनिंग कर लें, या फिर आप इसके लिए ओपनिंग एंड यू कैन आल्सो यूज इट फॉर सेलेक्टिंग. ये तीन आपके मेन जो पर्पसेस होते हैं ना, it is basically conducted by mouse. So you control the pointer on the screen for either dragging a file from the desktop to the what do we call it, dustbin वाली फाइल को क्या बोलते हैं यार? यार I forgot the name. What do you guys call that dustbin वाली फाइल? यहाँ पे in Mac it's called bin, in Windows it is called, यार मैं भूल ही गया हूँ इसको क्या बोलते हैं, दैट ऐप जहाँ पे रिसाइकल बिन. यस यस, बिल्कुल रिसाइकल बिन. सो वहां पे ड्रैग करना है, या यू वांट टू ओपन समथिंग तो यू डबल क्लिक, या यू वांट टू सेलेक्ट समथिंग तो आप राइट क्लिक करते हैं. तो ये जितने ये वाले काम होते हैं ना, ये आपका करते हैं माउस. नाउ व्हाई इज माउस सो गुड? बिकॉज फर्स्टली it works on almost any surface. So there is this one benefit that mouse works on almost any surface. On almost any surface. एक second, Ahmed. Any surface. Sir, in the malware topic, we only need to know what viruses, Trojan, worms are, and not how they work. यार Ahmed, वो हम I will confirm it from the syllabus. लेकिन in the malware topic, you basically need to know, you need to be aware of कि like what is a virus and how does a virus affect you, and like virus में वो क्या चीज होती है that makes it different from a Trojan horse, like किस तरह वो खुद को replicate करता है and all that. So you do need to know a bit of the process about how virus and Trojans and all these stuff work. सही है? So it's वहां पे तुम लोग को ये याद थोड़ा सा करना होगा, लेकिन once you study it as a story, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. बिल्कुल सैफुल्लाह, वायरस अटैक द वीक पॉइंट ऑफ योर कंप्यूटर. नाउ बैक to the input output devices वाली चीज. Now mouse works on almost any surface, which is one benefit. This is one benefit. Okay, so अगर आपसे एक benefit पूछा जाए कि यार why should Ahmed be getting a mouse, तो आप ये बता देना कि mouse almost is an important word, because at some scenarios there might be some point जहाँ पे आप माउस को यूज करें, काम सही से ना करें, तो ये उसके लिए हम ऑलमोस्ट वी कैन, या आई नो आप उसको टेबल पे रखना चाहते हैं, आप अपने लैब के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कभी भी कहाँ भी करना चाहते हैं, मोस्टली वर्क्स. लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी बहुत सी जगहों पे आपका माउस सही से ऑपरेट नहीं करता. सो इसलिए द वर्ड ऑलमोस्ट इज इंपॉर्टेंट. एंड एक और इसका बेनिफिट ये कि यार इट इज
fast and accessible, it detects fast, and एक आपका वर्ड होगा फास्ट, एंड दूसरा आपने बोलना है एक्यूरेट मूवमेंट डिटेक्शन, एंड एक्यूरेट मूवमेंट डिटेक्शन, मूवमेंट डिटेक्शन। बिल्कुल अहमद, आपने सही बोला, इट डज नॉट वर्क ऑन रफ सर्फेसिस, लेकिन अब रफ सर्फेसिस अगर नहीं करता, दैट इज द रीजन वी बेसिकली यूज द वर्ड ऑलमोस्ट, राइट? सो द वर्ड ऑलमोस्ट इज हियर टू इंडिकेट कि यार शायद किसी उस पे ना चले। एंड रियान, द वे यू सेड इट इज एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, अब उसमें याद रखो it is an industrial standard, लेकिन all of these input devices are basically industrial standards. Like you need a keyboard almost everywhere, you need a microphone almost everywhere. So अगर question आता है आपके पास कि यार why should you be buying a mouse or purchasing a mouse, तो आपने यहाँ पे ये point नहीं डालना कि it is an industrial standard. Why? Because all of these input devices जिससे आपने answer देना है, these all are basically industrial standard, right? So you need to give an answer which makes it unique. Again, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, like the question, the exam test which I gave for चैप्टर नंबर 2, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो लोअर पार्ट है उसके अंदर देयर इज अ क्वेश्चन जिसको मैंने नोट में लिखा था कि इट वॉन्ट बी मार्क्ड, लेकिन अगर किसी ने करना है तो वेल एंड गुड, वरना यू गाइस आर नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर दैट, राइट? सो उसमें आपसे पूछा गया कि सजेस्ट 2 इनपुट डिवाइसेस व्हिच द पर्सन कैन यूज। अब वहां पे आपने बताना था कि यार it was maybe like some train station, I guess, if I'm not wrong. By the way, I will mark your test by tonight, inshallah. Okay, so आप उसके अंदर QR कोड का स्कैनर डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप टिकट को उससे वो स्कैन कर सकते हैं। You can also have maybe some scanner or something like that. So ये जितने ऐसे इनपुट डिवाइसेस है वो आपके करेक्ट आंसर्स होंगे, सही है। कीबोर्ड का अगर वो आई एम नॉट श्योर कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई इस तरह के डेटा इनपुट करना है या पासवर्ड डालना है तो यू कैन हैव अ टच स्क्रीन, यू कैन हैव अ कीबोर्ड, यू कैन हैव इवन माइक्रोफोन विल नॉट बी अ फाइनर। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर एंटरिंग अ पासवर्ड यू नीड टू मेक श्योर कि यार किसी लेफ्ट राइट वाले बंदे को आवाज ना है, तो वो माइक्रोफोन विल बी अराउंड, इवन दो माइक्रोफोन से आप बता सकते हैं, राइट? सो आपने इस तरह थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचना होता है कि यार इस सिनेरियो में कौन सी डिवाइस मुझे ज्यादा बेहतर लग सकती है। एग्जैक्टली हमारे पास 3 टच स्क्रीन है, उनको इंशाल्लाह आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो माउस के बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए। काम कैसे करते हैं? बुक के अंदर इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है ना, कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँ ना, तो आपको बस इतना समझ आ जाना चाहिए, इतना समझ आना चाहिए कि जब आप माउस को उठाते हैं उसके नीचे होती है रेड लाइट। यू गाइस वुड हैव सीन व्हेनेवर यू टेक अ माउस देयर इज सम रेड एलईडी लाइट, सही है? सो that red light basically shines onto the surface। जब वो शाइन करते हैं ना सरफेस के ऊपर, उसके बाद क्या होता है कि यार इसके अंदर होते हैं कैमरास, माउस के अंदर। द माउस के अंदर जो कैमरास होते हैं, दोस कैमरास टेक पिक्चर्स एंड बेसिकली रिफ्लेक्ट्स, द लाइट इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड। सो उसके अंदर जो आपके कैमरा होते हैं, इट फर्स्टली टेक्स पिक्चर्स, द कैमरा इनसाइड माउस, इसके अंदर माउस के अंदर कैमरा होते हैं, सही है? दोस टेक पिक्चर्स। वो पिक्चर्स का क्या होता है यार, प्लूरल ऑफ माउस, आई डोंट नो, what a check it by the way, plural of mouse, it is mice, yeah it's mice, बिल्कुल। so camera takes pictures, सही है। फिर उसके अंदर आपके होते हैं लेंस, जो लेंस आपके लगे होते हैं ना माउस के अंदर, दोज आर बेसिकली उसके ऊपर जो लाइट होती है ना वो रिफ्लेक्ट होती है। so the light gets reflected on a surface एंड फिर वो जो सरफेस के ऊपर एक चीज लगी होती है जिसको बेसिकली दे कॉल इट CMOS सेंसर। ओके, तो वो CMOS सेंसर क्या कर देता है, CMOS सेंसर इस तरह, CMOS सेंसर। अगेन ये कुछ याद नहीं करना, लेकिन बस आप लोगों को पता हो कि अगर आप बुक में पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया हो कि यार हमने इस तरह पढ़ा था। दैट सेंसर बेसिकली कन्वर्ट्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अगर आप लोग कल की क्लास में थे तो यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया दैट व्हेनेवर वी हैड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी यूजिंग अ ADC converter, analog to digital converter. So using an analog to digital converter we converted those electrical signals into binary, and फिर वो binary को basically computer का आपका जो CPU होता था that used to execute it. So that's basically a very quick overview of how the mouse works. Again, not in course, okay, not required by the way. This is something मैंने आप लोग को कल जो ग्रुप में इमेज भी भेजी थी, that was an official mail stating कि यार you don't need to know any of these operations, लेकिन क्योंकि it's in the book and the book included it for the fact कि आप लोग को समझ आए, तो हम भी थोड़ा ओवरव्यू 2 सेकंड के अंदर इस तरह डिस्कस करेंगे कि आपको पता हो कि माउस वैसे चलता कैसे। We are done with mouse, right? अब माउस के बाद हमने क्या करना है? माउस के बाद there is this device known as scanner। स्कैनर, अब स्कैनर क्या चीज होती है? There is something known as a printer and then there is something known as a scanner. Like what is a printer? Printer is a device जिसके ऊपर if I want to, यार इसको 5 स्टार कर लेते यार, नहीं होता तो अब मैं क्या करूं?
नहीं होता तो चलो 4 ही कर लेते, लेट्स रेट इट विद 4, ओके। सो अब देखो आपके पास स्कैनर होते हैं ना, व्हाट्स अ स्कैनर? स्कैनर इज दैट स्पेसिफिक डिवाइस जिसके ऊपर आप बाहर से कोई पेज होते हैं ना, लाइक लेट्स से आई हैव दिस डायरी विद मी एंड मे बी इसके ऊपर दिस इज सम पेज, राइट, मे बी दिस इज अ पेज। If you guys look at this, this might be some page. Now, इसके ऊपर मैं writing कर लेता हूँ and I want this page to be basically displayed on the computer. So मैं क्या करूँगा? I'm gonna take this scanner के ऊपर वो करके, या जो हम फोटो कॉपी नहीं करवाते वो वाली मशीन टाइप हो, उसके ऊपर इस तरह रख के टंग, and basically the same to same thing, the same file is basically gonna go onto the computer. बिल्कुल perfect example given to us by Ahmed. Your Cam Scanner app on the phone is a type of scanner. क्यों scanner है? It is basically converting that digital image, that physical image या physical document into a digital stuff. लेकिन जो हमारे स्कैनर एज एन इनपुट डिवाइस होता है ना, वो कैम स्कैनर तो फिर आप फोन में यूज करें, टाइप्स ऑफ बिकम लाइक अ डिजिटल थिंग, राइट? जो आपका स्कैनर असली में होता है ना, लेट मी कॉपी सम इमेज, स्कैनर इमेज, आपको मैं स्कैनर दिखाता हूँ। सो दिस इज अ स्कैनर, रुको कोई अच्छी सी एग्जांपल हो यार, दिस, सो दिस इज सम स्कैनर फ्रॉम द कंपनी एप्सॉन या ईपीसॉन, व्हाटएवर however you, जिस तरीके से भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट ये देखें, दिस थिंग इज बेसिकली नोन एज अ स्कैनर। नाउ दिस थिंग, इसके अंदर होता क्या है, यू पुट इन अ इमेज, यू पुट इन द फाइल इन दिस थिंग, सही है, आप यहाँ पे उसको स्टोर करते हैं, सही है, एंड उसके ऊपर बिल्कुल फोटोकॉपी वाली मशीन की तरह, लेकिन फोटोकॉपी में तो प्रिंट निकल जाता है, इसमें प्रिंट नहीं निकलता। ये इस तरह होता है कि ये आप कनेक्ट करते हैं टू योर कंप्यूटर, सही है, सो आप कंप्यूटर के साथ ये कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह, एंड व्हेन यू क्लोज द लिड and you turn it on, the same image, this car image, if you guys look at this, it's like a car image, right? So it's some abandoned car. This abandoned car image is directly going to go onto the PC. So आपकी PC के ऊपर यहाँ पे ये image open हो जाएगी. Now the purpose of scanner is basically used, the exact, मतलब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर, वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए तो you should know the purpose of scanner is to turn paper documents into digital file. So हम इसको लिख लेते हैं, turn paper documents into digital file, remember digital files are anything which are basically stored on the computer. So जब हम किसी पेपर वाली फिजिकल हार्ड फॉर्म चीज को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके ये स्कैनर करते हैं, सही है। अब कैम स्कैनर भी यही चीज है ना, फिजिकल चीज को एक किस्म डिजिटल उसमें कर लेते हैं। It's too easy to convert to PDF rather than using a camera. यार अगर इस तरीके से देखा जाए ना तो द फॉर्म जिसके अंदर ये आएगा दैट इज गोना बी अ पीडीएफ आइदर वे। सो वही बात है कि इसमें क्वालिटी बेहतर होती है, बिल्ट इन फोन कैमरा से डेफिनेटली इट्स बेटर, डेफिनेटली। नाउ दिस थिंग इंश्योर्स कि द क्वालिटी इज टॉप नॉच। आप इसके ऊपर एक एक्चुअल फोटोग्राफ इसके ऊपर रखें एंड इट्स गोना बी लाइक यू हैव द फोटो with you on the computer already and you directly like print it out. लेकिन आप फोन का कैमरा यूज करें, you might have seen that using cam scanner sometimes results in the quality dropping, right? It is because of the fact कि आपके उसके अंदर वो खराब होते जाते हैं। अब हाँ, now Ahmed gave us a very good example, CAIE exam। अब जो हम आप लोग का जो एग्जाम होता है वो किस तरह चेक होता है आपको पता है? Now if let's say in Ahmedabad, this exam basically जब आपके पेपर्स हो जाते हैं, you might have seen that big box जिसके ऊपर लॉक्स लगे होते हैं, इन्विजिलेटर्स just recheck all those papers, उन बॉक्स में रख लेते हैं, ताला लग जाता है, done. So when the exams are done, like if I'm in Ahmedabad, the papers are going to go to Islamabad, okay? हाँ, वो ट्रेजर बॉक्स बिल्कुल, that my papers are going to go to Islamabad. इस्लामाबाद में ब्रिटिश काउंसिल का जो हेड होगा, जो ऑफिस होगा, वहां पे क्या होगा, these papers are taken out and they are basically scanned. Those papers are basically scanned. अब उस स्कैन का क्या मकसद होता है? नाउ यू माइट हैव गिवन दोस एग्जाम्स, समवन हैवंट गिवन एन एग्जाम। आपके अगर एग्जाम पेपर आप कभी खोलोगे ना, एक्चुअल कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन, उसके ऊपर यहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं, यहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं, सही है, यहाँ पे, सही है। सो हाँ, दे डू गो टू यूके, लेकिन रुको ना, ये जो ये बॉक्सेस वाली अलाइनमेंट है ना, इन चीजों को बेसिकली थाउजेंड ऑफ पेपर्स को ये लोग स्कैन करते हैं, ये इस तरह रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, and all of these papers are basically scanned, they go to a server, and wahan se from the server the exams are basically sent directly to the examiners who might be either in the UK, or it might be also possible like my examiner, like my economics teacher, he's a Pakistani, he's currently in Karachi, but he is also an official Cambridge examiner, so he was marking the May June 2025 exam papers.
तो उसके बाद किस तरह उनकी एक ऐप होती है, वहां पे आपको पेपर्स मिल जाते हैं कि नाउ यू नीड टू मार्क दिस, तो वो इस तरह होते हैं. सो योर पेपर्स डू नॉट गो फिजिकली टू यूके. Your paper go to your closest British Council head, that could be Islamabad, Lahore, I'm not sure अगर पेशावर में हो या होता है, होना तो चाहिए वैसे, या मे बी कराची, एंड वहां से ये स्कैन होते हैं. स्कैनिंग ये जो, वैसे अगर आप लोग के ख्याल में से यूके जाते तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी ये जो एग्जाम पेपर में कोनों में इस तरह की चीजें होती हैं, ये चीजें ये याद रखो. आप लोग कभी पेपर देखो उसमें इस तरह के मार्क्स होते हैं, एंड आपको शायद इस्लामियत के टीचर ने बोला भी हो कि इससे बाहर नहीं लिखना, वो चेक नहीं होता. व्हाई इज इट चेक? क्योंकि ये जगह आपकी स्कैन ही यहाँ तक होती है. सो एनीथिंग अबाउट दिस इज नॉट बेसिकली स्कैन, so they cannot even see it. So इसलिए आपको बोला जाता है कि even in CS exam if you want to cut something, make sure in line से बाहर नहीं निकलना. So what does a distinction mean? No, examiner do not give you extra marks. They might give you, अगर कोई error हो जाए इस तरह एम ही नहीं देते. Distinction basically means scoring the highest marks, not full marks, scoring the highest marks in a specific region. So if you score the highest marks in the world, in the whole world, if you were the one who scored the highest, and it might be like 149 के ऊपर, 149 से किसी ने highest नहीं लिए, and you scored 149, so you get a top in the world distinction. Maybe the highest kiddo who scored in Pakistan might be like 148, तो फिर आपको 148 मिल जाते हैं, and उसके ऊपर आपका top in Pakistan हो जाए. Yeah, you get a certificate. Let me show you guys the certificate I got. Just a moment, guys. आपको मैं दिखा देता हूं. That's like pretty strong accolade if you want to show in your university applications and all that. Just a moment. ये आप लोग देखें. This is my LinkedIn. So if you guys can look up here, you get something like this. So can you open this in the new tab? Yeah, we can share this tab. So you get a certificate like this. So this to certify that Muhammad Maaz Munir gained the highest marks in Pakistan for Cambridge IGCSE computer science and all that. And this was basically me after I got the certificate. अच्छे दिन थे यार. नहीं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिन है, लेकिन still this was me in the British Council. They invited us to, what do we call it, Marriott. So now we do not get a VIP hotel stay. It's like they just invite us for a ceremony, even though the certificate might be boring, but this certificate has so much value कि मैं क्या बताऊँ. It has like a lot of value. हाँ खाना था, by the way, Marriott में खाना था, सोच लो, अच्छा था scene. So yeah, I do have a LinkedIn. Yes, I do have a LinkedIn. Okay, it's recorded. My LinkedIn is basically Muhammad Maaz Munir. If anyone wants to connect later on, that's my account. And so you guys can have a look at who I am. यार आप लोग क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर वो होता है. सो इट्स में इस तरह वो तो हर कोई फिर कर ले, बट इट्स नॉट दैट इजी. ओके, सो यस, इफ एनीबॉडी वांट्स टू हैव अ लुक एट हु आई एम, so they can have a look at my LinkedIn, by the way. But chalo, back to where we were. So back to this tab. Now this thing is basically a scan, right? So अब स्कैनर क्या करते हैं, टर्न पेपर डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फाइल्स. उसके बगैर you can use it for like storing images. So you can also, like, if I want to edit some image, so store or edit image, edit images. I made my account, but when I search for jobs, they ask me. It's not necessary that you make a LinkedIn only for jobs. It's a point where you want to show your accomplishments. So like I have never applied to a job or something over LinkedIn, but I have always connected with many people, right? So like I connected with many people who were there in the US, and I used to ask them, can you rate my application? Can you rate my profile? Any recommendations? So LinkedIn allows you to have that diverse network. So yeah, and so ho jayega yaar. I would suggest at this stage, you guys should try to get some internships through your school. Tell your school, please arrange an internship for us in the relevant field which you want. So like I did an internship at Tech Valley. Whoa, mashallah, how did you win that, man? So इस तरह के आप लोग को internships करनी चाहिए. सही. Now back to where we are. आप स्कैनर के थ्रू इमेजेस और इनको स्टोर भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं. फिर इसके बगैर स्कैनर के अब आपके पास दो चीजें होती है. सही है. You can also use a scanner for security purposes. Now what do I mean by security purposes? Security purposes का ऐसा होता है कि when you're in airport, guys, listen up, please. Listen up. बाद में ये काम शाम की बात है बाद में. So now आप इसको security purposes के लिए भी use कर सकते हैं. How can you use it for security purposes? You can use it for the fact कि like अभी जो latest airports होते हैं ना, उसमें होता ही है कि
when you give the person your passport, they're going to scan the passport and आगे लगा होता है एक कैमरा. सो उस कैमरा से वो आपकी शक्ल देखते हैं एंड पासपोर्ट के साथ वो कंपैरिजन करते हैं. एग्जैक्टली दे स्कैन इट एंड देन दे कंपेयर बेसिकली योर नोज विड्थ एंड लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन योर आईज, फोरहेड की जो डिस्टेंस है, ये चीजें जस्ट टू इंश्योर कि यार द बंदा हु इज ऑन पासपोर्ट इज ही द सेम पर्सन एज द वन हु इज basically coming in. So you can also use a scanner for security purposes. Now you have basically two types of scanners. एक को कहते हैं 2D scanner. Let me write it up here. Two types. The first one is basically known as a 2D scanner. हाँ ना, वही ना, जब आप जाते हैं आप पासपोर्ट दे ऑल्सो लोग, ये उसका पर्पस ही यही होता है कि दे वांट टू इंश्योर कि यार द बंदा इज सेम और नॉट. सो द फर्स्ट वन इज बेसिकली अ 2D स्कैनर. अब 2D स्कैनर क्या होता है? 2D स्कैनर इज द वन जो कि 2 डायमेंशनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करे. आप, आई बिलीव यू गाइस वुड नो कि व्हाट इज 2D. 2 डायमेंशनल बेसिकली मींस एनीथिंग लाइक अब मैं कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहूँ, कोई पेज को स्कैन करना चाहूँ, एनीथिंग व्हिच इज ओनली इन लाइक अ सिंगुलर फॉर्म. सही है. हाँ, अब ये देखो, यू कैन कनेक्ट द स्कैनर टू एन एम्बेडेड सिस्टम एंड मेक अ कार्ड ओनली डोर लॉक. अब ये वही सिक्योरिटी सिस्टम आ गया ना. You're trying to make combine input hardware and software into a singular device just for one purpose, security. So it is just you made sure कि यार जो आपका security system है, it is way more protective. So good example Ahmed, आपके 2D scanners are the one जो कि इस तरह होते हैं. This is like a 2D scanner. कोई डॉक्यूमेंट कोई चीज हो तो आप इसके ऊपर रखते हैं, यू क्लोज द लिड एंड फिर उसके बाद एक ग्रीन लाइट बेसिकली चलती है. वो उसमें होता क्या है, दैट ग्रीन लाइट बेसिकली, जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक सेकंड. वो ग्रीन लाइट में बेसिकली सीन इस तरह हो जाता है ना कि जब आपकी ग्रीन लाइट, आप जाते हैं ना कभी फोटोकॉपियर के पास, फोटोकॉपियर की जब वो बंद करते हैं तो एक लाइट सी इल्यूमिनेशन होती है. उसके बाद क्या होता है, अगेन द सेम पर्पस, आपके मिरर्स होते हैं, लेंसेज होते हैं, दे फोकस द इमेज ऑन टू अ सेंसर एंड उससे आपके बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं. इलेक्ट्रिकल चार्जेस से बेसिकली बाइनरी के अंदर वो कन्वर्ट होता है एंड फिर आपकी टेक्स्ट फाइल या इमेज फाइल बन जाती है. सो इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके एमसीक्यू एग्जाम्स टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू एग्जाम्स जो होते हैं ना, वो किस तरह होते हैं, इट इज डायरेक्टली स्कैन एंड वो डायरेक्टली आपके रीड ऑफ होके आपके मार्क्स अपलोड हो जाते हैं कि यार दिस बंदा गॉट दिस मेनी मार्क्स. दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली नोन एज OCR टेक्नोलॉजी. Now OCR technology is the one जिसके अंदर दे बेसिकली जो आपके MCQ एग्जामिनेशंस होती है ना, MCQ पेपर्स, MCQ एग्जाम्स के अंदर आपके कभी भी वो फिजिकली एग्जामिनर नहीं मार्क करता. इट्स मोर ऑफ लाइक कि आपने जो शेडिंग की होती है, इट गोज इन, इट डायरेक्टली गेट स्कैन एंड उस तरफ आपके मार्क्स आ जाते हैं. तो वो आपका जब इस तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है ना, दिस टेक्नोलॉजी व्हिच इज बेसिकली empowered by 2D scanner, this technology is basically known as OCR technology. So it used to get tested before 2023. Not sure कि अभी 2023 के बाद इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि OCR टेक्नोलॉजी रेफर्स जब आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करें. सेलुलर डेटा जब एक डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता है, तो दैट इज बेसिकली नोन एज सीरियल. सही है. सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड फिर आपके पास आता है सीरियल एंड पैरेलल. यस, तो जब एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करे दैट इज बेसिकली सिंप्लेक्स, और अ सिंगल वायर तो दैट इज बेसिकली सीरियल. तो अगर हम बोले सीरियल सिंप्लेक्स तो इसका मतलब एक वायर में एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है. हाफ डुप्लेक्स में होगा कि दोनों डायरेक्शन में लेकिन एक टाइम में एक साइड में जाएगा. फुल डुप्लेक्स दोनों साइड में. यार हाँ, आई हैड like I don't know, I didn't see the marking scheme, but I had 40 marks. Yeah, alhamdulillah, I feel like, not sure though, not sure, again कंफर्म तो नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री का आई एम नॉट श्योर. यार आई हैड alhamdulillah 7 A stars and 1 A in my IGCSEs, and then I had 4 A's in my AS level. And अब अल्लाह खैर करे, I have to meet the condition, अल्लाह खैर करे. You guys please remember me in prayers से, ताकि A2 का रिजल्ट अच्छा आ जाए. I was doing IGCSE, yes I was doing IGCSE, not GC. It's the same thing, एक ही बात है. No, it's almost the same thing, कोई different नहीं है. Yeah, alhamdulillah, mashallah, it was good, alhamdulillah. लेकिन again, now back to where we were. अब 2D scanner एक टाइप का होता है जिसमें basically आपकी 2-dimensional चीजें होती है. Like अब मैं इस पेज को करना चाहूँ तो that's a 2-dimensional thing. लेकिन we also have something known as 3D scanners. Now 3D scanners क्या होता है? From the word 3D आपको समझ आ जानी चाहिए कि 3D scanner means कि यार if I want to scan something which has like
length, width, and also some sort of like ऊपर की तरफ z direction के अंदर, like it is x direction, this is y direction. and आगे आप लोग पढ़ोगे that when we have a 3-dimensional figure, उसके अंदर जो ऊपर की तरफ dimension होती है, that is known as a z direction. And so if I have these glasses with me right now, सही है, and I am making some sort of not print both sides, it is more of like कि जो आप लोग कभी कभार, let me give you guys a good example. I wrote it some here, एक से, हाँ, जो आप लोग मॉडलिंग करते हैं, लाइक अब मैं कोई मॉडल बनाना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू मेक सम प्रोटोटाइप, राइट, आई वांट टू मेक सम प्रोटोटाइप, अब प्रोटोटाइप में बनाना चाहता हूँ किसी गाड़ी की, तो डेफिनेटली दैट प्रोटोटाइप इज फर्स्ट मेड इन सम ऐप, दैट ऐप इज बेसिकली नोन एज कैड एप्स, ऑटो कैड, और ये चीजें आपने सुनी होंगी. तो ये कैड वाली जो चीज है, कैड होती है, कैड का जो फुल फॉर्म होता है, आई गेस आई नीड टू चेक इट, इसमें कैड फुल फॉर्म कोई cathode aided design, computer aided design, yeah, so its full form is computer aided design. Okay, so computer aided design kya cheez hoti hai? It is basically a software which allows you to make 3D models. So aap uske andar ye ki if like Ahmed said blender, ab maine agar koi cheez banani hai, let's say I want to make make a prototype for a car, to main app ke andar jaake I like make a car like this, like by the way, I was really very good with drawing back then. So I used to make a car like this. Check kar lo guys, itni jaldi mein itni maze ke sports car banata tha. And I even used to tell people कि यार आप पैसे दो, मैं आप लोगों के लिए गाड़ियां बनाऊंगा. back when I was in grade 1. So इस तरह की गाड़ियां. Now I made something like this. Now I want to print it. अब इसको मैं print करना चाहता हूँ ना, and I want to make sure कि यार बिल्कुल सही से print हो जाए, just like the model. तो ये 3D printer करता है. तो 3D प्रिंटर जो है आगे हम पढ़ेंगे, दैट्स एन आउटपुट डिवाइस. उसमें क्या होता है कि आपके जो 3D मॉडल्स होते हैं उसको वो प्रिंट करते हैं, एज इन की वो जो प्रिंट होते हैं, इट इज बेसिकली इन द 3D टॉय वाली शक्ल. सो 3D स्कैनर इस तरह होते हैं कि अब इस गाड़ी को मैंने बेसिकली स्कैन करके कंप्यूटर एडेड CAD के फॉर्म के अंदर डालते हैं. तो उस फॉर्म के अंदर जब मैंने डालना होता था, वो माशाल्लाह, सो वी हैव अ बिजनेसमैन इन हियर. वाओ रियान. So Riyan, when are you starting those business courses for us? Please don't take money by the way. सही है ना, free में हमें डाल देना. But now, if you want to have such a car model, and इस car गाड़ी को आपके पास पड़ी हुई है, like if I have a toy right now, and मैंने उस toy को CAD form में डालना है, computer aided design, this is like the type file, okay? This is the type file. तो ये जिस तरह हम EXE बोलते हैं, जिस तरह हम डॉक का फाइल होते हैं ना, तो .docx होता है. तो इस तरह जो 3D मॉडल्स के जो फाइल होती है, दैट इज बेसिकली .CAD के अंदर. सो व्हेन आई वांट टू कन्वर्ट सम कार इनटू सम .CAD वाली फाइल, तो उसके लिए जो चीज यूज होती है, दैट इज अ 3D स्कैनर. सो अगेन 3D स्कैनर का क्या काम है? इट बेसिकली हाँ यार, इट डिपेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि प्लास्टिक को ये तो स्कैन करे ना. इवन लाइक इफ आई हैव दिस फोन विद मी, किधर गया, इफ आई हैव दिस फोन विद मी, मैं इसको स्कैनर के अंदर डाल दूं ना, it's going to verify, it's going to measure the length, width, everything, and फिर app के अंदर I will have a phone. So I might have a phone of the exact dimensions. So if I want to make a newer version, तो maybe इस तरह के मेरे पास आ जाएगा, then I have tools to upgrade in वगैरह 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 चीजें. तो ये स्कैनर का बेसिकली काम ये है कि कोई फिजिकल चीज जो मेरे पास हो ना, which is not like a page जिसको मैंने सिर्फ इस तरह करना है, it might also have some width and breadth and height and everything. तो उसको बेसिकली कंप्यूटर के अंदर CAD फाइल खिलाने के लिए, that is basically done by your 3D scanner. Now we are done with scanners. Scanners में बस ये चीज है. एक चीज आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं जो आपके 3D स्कैनर की एक एग्जांपल में आप लोग को दूं, तो वो CT स्कैन है. आप लोगों ने शायद सुना हो ये वर्ड CT स्कैनर. स्कैन होगा, CT स्कैनर नहीं होगा. CT स्कैन. CT स्कैन यूजुअली इस तरह होती है कि when the doctors want to examine your body, they basically tell you कि भाई आपने करना है CT स्कैन. Now what's a CT scan? CT scan is something जिसके अंदर a person, this might be a machine, सही है, इस तरह की कोई मशीन होती है, and then the person is asked to lay on some bed, सही है, ये बंदा है, सही है, and this person is basically passed through this machine. After this what happens is कि यार बंदे का ना पूरी body slices में हो जाती है. So like if I pass this object through that thing, after it goes through the machine, it basically becomes something like this. So हमारे पास अलग अलग slices आ जाती है. So the doctor can then basically examine each of the part and see यार कहाँ पे मसला है, क्या क्या चीजें हैं. Exactly, बिल्कुल. 3D scanners are the one which are used for 3D purposes. When we want to do 2D stuff, तो वो आपका 2-dimensional वो चीजें होंगी. तो remember, if as clever in an example कि 3D scanner कहाँ पे होगा, तो do know कि CT scan जो होता है, which is basically a method to examine your body by the doctors, examine your body. This is one example of a
3D स्कैनर। एंड अगर मैंने आप लोग को 2D स्कैनर का बताना हो तो उसमें OCR टेक्नोलॉजी में MCQ पेपर्स भी आ सकते हैं। एंड जो मैंने पासपोर्ट स्कैनिंग का बोला है ना, पासपोर्ट स्कैनिंग एट एयरपोर्ट, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि आपकी 2D स्कैनिंग के अंदर आ रही। क्यों? क्योंकि एट द एंड आप पासपोर्ट जब उसके ऊपर रखते हो, जो भी चीज आपसे मांगते हैं, दे लाइक ओके पासपोर्ट टंग, वो जो आपकी उसके ऊपर टंग होता है वो क्या हो रहा है? इट इज बेसिकली दे कन्वर्टेड, दे गॉट द डेटा फ्रॉम योर पासपोर्ट ऑन टू द कंप्यूटर, राइट? दैट इज ऑल्सो डन बाय योर 2D स्कैनर। तो ये दो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। अगेन नो नीड टू लर्न कि हाउ डज अ 3D स्कैनर वर्क और हाउ डज अ 2D स्कैनर वर्क, लेकिन बस आपको ये पता हो कि ये वाली कहानी है। नाउ वी आर डन विद दैट। नाउ we need to learn the most difficult type of input device, जो कि मुझे तो बहुत बुरी लगती थी to be honest, and that is touch screens. Now what is touch screens? Touch screens are the devices, is the input device that allows you to basically interact with the computer using your fingers. So like we had mouse, right? तो mouse के through में वो काम कर सकता हूँ। लेकिन let's say my phone has a touch screen or my laptop has a touch screen, मैं directly हाथ लगा के भी वो सब कुछ कर सकता हूँ। So why use a touch screen? Because touch screen is a direct, easy interaction. It allows, like हम इधर लिख लेते हैं, it allows direct and easy interaction with the computer. So like अभी आप लोग जितने फोन्स यूज कर रहे हैं या कोई टैबलेट यूज कर रहे हैं, आप लोगों में से कोई माउस और ये चीजें तो नहीं कनेक्ट कर रहा ना यार। देखो एमर टच स्क्रीन इजंट गुड ऑन लैपटॉप, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज लैपटॉप के ऊपर जो आपको काम करता है इट्स मोर कन्वीनियंट टू यूज अ माउस, राइट? लाइक इट्स सिमिलर। नाउ यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अ माउस और अ कीबोर्ड टू योर फोन। इफ यू गाइस डोंट नो दैट, you can, if you get like a type C mouse, let's say, आप वो माउस इसके साथ कनेक्ट करें फोन के साथ, आपके फोन के ऊपर कर्सर शायद आ जाए। अगर कर्सर नहीं आता आप कीबोर्ड लगा ले, कीबोर्ड तो चलेगा। अगेन डिपेंड्स अगर ड्राइवर कंपैटिबल हुआ या ना हुआ, तो वो चीज है। लाइक द ग्राफिक टैबलेट व्हिच आई हैव, उसके अंदर दे गेव मी दिस ऑप्शन कि यार अगर आपने इसको डायरेक्टली टाइप सी के साथ प्लग करना है तो वो कर सकते थे। तो वो जो चीज है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग व्हिच आई वुड बी डूइंग, राइट? तो मैं माउस क्यों फोन के साथ कनेक्ट करूंगा? सो टच स्क्रीन अगेन टच स्क्रीन हर एक चीज की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर फोन्स इट इज वेरी रिकमेंडेड, फॉर लैपटॉप्स इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टच स्क्रीन्स ऑन लैपटॉप्स टू बी ऑनेस्ट। सो व्हाई डू वी नीड अ टच स्क्रीन? वो बेहतर है कि आप लोग को ये पता हो कि इट अलाउज डायरेक्ट इजी इंटरेक्शन, सही है। इट ऑल्सो रिप्लेसेस अ माउस और अ कीबोर्ड, सही है। एंड एक इसमें जो बात होती है, इट इज फास्टर एंड मोर इनिशिएटिव than traditional devices. What do I mean by this? Like let's say आप लोग कभी कभार किसी रेस्टोरेंट में जाएं, then traditional devices, usually this is there in McDonald's. By the way, McDonald's को boycott करे openly, claiming that I will highly recommend everyone perhaps order, अगर आप लोग मेरे order को मानते हैं कि please do boycott all these companies, free Palestine. So उसके अंदर there is something known as kiosk ही बोलते हैं I guess। कियोस्क जो चीज होती है ना, या चीजियस के अंदर, चलो चीजियस के अंदर है तो ये तो और अच्छी बात है ना। वो क्या चीज होती है? आपकी एक टीवी लगी होती है, एक स्क्रीन सी, आप उस पे जाते हैं, आप उसी के ऊपर डायरेक्टली जाते हैं, न्यू ऑर्डर, देन यू आर लाइक ओके आई वांट टू हैव अ पिज़्ज़ा, देन यू गो चीजियस के अंदर, क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट चीजियस बाय द वे, ओके, यू ऐड सम टॉपिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड देन दे आर लाइक ओके ऑर्डर डन। वो आपको कोई रिसीट देते हैं, लाइक अ रिसीट, एंड उसके ऊपर आपका टेबल नंबर और वो चीजें। अब वो जो स्क्रीन वाला खाता है, उसमें अगर मैं माउस एंड कीबोर्ड वाली चीजें डाल दूं तो यार एक तो वो जगह ज्यादा लेगी डेफिनेटली। फिर आप एक बात बताओ, एक बंदा है वो जो हमने कल एग्जांपल डिस्कस की थी, डेफिनेटली इज लाइक अगर आप लोग की कोई ग्रैंड पेरेंट्स या कोई ओल्डर पर्सन जाए, रादर देन फाइंडिंग वो टाइपिंग चीजी पिज़्ज़ा इस तरह लेके, उसकी जगह अगर स्क्रीन के ऊपर इमेज आ गई कि यार दिस इज चीजें, वो उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करे, वुडंट दैट बी फास्टर? सो टच स्क्रीन का आपको एक ये डायरेक्टली फायदा है कि it allows you to have easy interaction, right, with the computer or any device, okay, whatever it is. Yeah, it is also way more faster, and it is something which is way more reasonable and recommended than the traditional devices. So these are two reasons why you should be having a touch screen. Now we have basically three types of touch screens. We have three type of touch screens जिसको हम बोल सकते हैं touch screen technologies. So we have basically three type of technologies. The very first technology is capacitive. अब इसमें आप लोग एक बात सुन लो, कैपेसिटिव होगी या ये जो होगी, इसके अंदर यू गाइस नीड टू नो कि यार जो तीनों टेक्नोलॉजीज है उनमें क्या क्या डिफरेंस है। यू शुड मेमोराइज द डिफरेंसेस। अगेन यहाँ पे करना है, मेमोराइज द डिफरेंसेस
फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हर ग्लास या हर टच स्क्रीन कहाँ पे काम अच्छा करता है, क्या उसके प्रो पॉइंट्स है, क्या उसके कॉन्स है। सही है। अब ये काम किस तरह करते हैं कैपेसिटिव वाला? कैपेसिटिव के अंदर बेसिकली सीन इस तरह होता है कि कैपेसिटिव इज फ्रॉम द फिजिक्स वर्ड डीलिंग विद कैपेसिटेंस। सही है। सो कैपेसिटेंस बेसिकली इज अ कॉन्सेप्ट जो आप लोग A2 में पढ़ोगे इंशाल्लाह, एंड इट इज रिलेटेड टू बेसिकली स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसके अंदर होता क्या है, अगेन दिस इज समथिंग जो कि आप लोग को वर्किंग का इतना नहीं पता होना चाहिए, लेकिन लेकिन कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, इट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस, लेट मी कंफर्म इट टू, यही है ना, ऐसे ना मैं आप लोग को गलत बोल रहा हूँ। या इट इज कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, ये आप लोग के कोर्स में नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस इज बेसिकली द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। सो इसके अंदर होता है ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अंदर आपके पास ये एक पॉइंट आता है कि इट हैज लाइक अ ग्लास एंड सम कंडक्टिव लेयर। सो इट हैज अ ग्लास प्लस कंडक्टिव लेयर। व्हाट डू आई मीन बाय कंडक्टिव लेयर? कंडक्टिव लेयर मींस कि यार जब उसके ऊपर मैं कोई हाथ लगाता हूँ ना, तो इट बेसिकली गेट्स चार्ज फ्रॉम माई, लाइक अब डेफिनेटली आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, इफ यू टेक अ रूलर एंड यू रब इट इन योर हैंड हेयर, एंड उसके बाद आप पेज के साथ इस तरह वो करते हैं, वो आपके पेज उठ जाते हैं, राइट? तो वो क्या हो रहा है, इट इज टाइप ऑफ, इट कंडक्ट्स दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आपके फिंगर्स हो गए, ऑल दोस स्टफ, हीट हो गई या जो भी है, इट हैज सम सॉर्ट ऑफ, एग्जैक्टली इट हैज सम सॉर्ट ऑफ चार्ज ऑन इट। तो जब आप वो कंडक्टिव लेयर ग्लास के ऊपर इस तरह वो करते हैं ना टच, तो आपकी एक बेसिकली कैपेसिटेंस स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। सही। तो उसके अंदर बेसिकली सीन होता है, जब आप उसको टच करते हैं, जब उसको आप टच करते हैं, तो ये जो आपकी कैपेसिटिव स्क्रीन होती है ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चेंजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन दिस इज नॉट इन द कोर्स, लेकिन फॉर योर ओन पर्पस। अब होता है इसमें अगर ये कि अगर ये आपके पास स्क्रीन है ना, इसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अप्लाई करते थे जो कैपेसिटेंस होती है। सो इट हैज ऑलरेडी दिस चार्ज ऑन इट। तो इफ आई टच इट एट दिस पॉइंट, इफ आई टच इट एट दिस पॉइंट, डेफिनेटली यहाँ से ये सारी जगहों में आपकी वो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही हैं, विच वी कैन नॉट सी, बट द मोमेंट आई टच इट, अब यहां से जो राइट साइड पे जा रही थी, इट नो लॉन्गर गोस। सो द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स कि ओ यार, ये तो यहाँ पे कोई ब्रेक आ गया। व्हेन दिस ब्रेक अकर्स, इसको पता लग जाता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। द मोमेंट योर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस, द कंप्यूटर बेसिकली आइडेंटिफाइज कि यार, द माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली आइडेंटिफाइज कि देयर हैज बीन अ टच एट दिस पॉइंट। सो इट डिटेक्ट्स, इधर लिख लेते हैं, इट डिटेक्ट्स द टच पॉइंट। सो इस तरह इसका बेसिक मैकेनिज्म है कि यार इसके अंदर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है जो कि आपका स्टोर का क्या चीज करते हैं, कैपेसिटेंस। तो उसकी वजह से उसमें ऑटोमेटिकली आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर पहले से चार्जेस होते हैं। सही रेयान, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहले से चार्जेस होते हैं, इट डज नॉट गेट चार्ज, इसके ऊपर पहले से चार्ज होता है। लेकिन व्हेन यू टच इट, तो वो जो चार्ज जो इधर उधर लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं ना, उसका डायरेक्शन ब्लॉक हो जाता है। इट्स मोर ऑफ लाइक कि अगर ये एक घर है, दिस इज सम हाईवे, एंड हाईवे में अगर मैं कहीं पे हाथ लगाता हूँ, इट्स लाइक वहां पे एस्टेरॉइड गिर जाता है। तो जब एस्टेरॉइड गिर जाता है, तो मे बी द सिटी हेड इज द सीपीयू, ही आइडेंटिफाई एंड गेट्स टू नो कि यार रोड नंबर 2 के ऊपर एस्टेरॉइड गिर गया, दिस एस्टेरॉइड इज बेसिकली माय फिंगर। सही है। एंड उससे मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि ओके दिस पॉइंट हैज द प्लेस जहां पे टच हुआ है, एंड फिर द सीपीयू एग्जीक्यूट्स कि यार इसके नीचे कोई ऐप है तो वो ओपन कर लो, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दिस इज हाउ योर कैपेसिटिव टच स्क्रीन वर्क्स। नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसके भी आपके पास दो टाइप्स आते हैं। The first type within capacitance is basically known as the surface capacitive. सही, surface capacitive क्या होते हैं, लिख लेते हैं पहले, surface capacitive. Surface capacitive is that type of basically capacitive touch screen जिसके अंदर आपकी जो कैपेसिटेंस होती है ना, जो आपके सेंसर्स होते हैं, जो कैपेसिटेंस की चार्ज को डिटेक्ट करती है, वो होती है हर कॉर्नर के ऊपर। सही है। तो इसका ये सीन होता है कि ये आपके पास स्क्रीन है ना, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है। तो जब आप कहीं पे टच करते हैं ना, मे बी इस पॉइंट पे आपने टच कर दिया, तो दिस बेसिकली चेक्स के ओ यार ये किस सेंसर के करीब है, ये किस सेंसर कितने दूर है, वगैरह वगैरह, कहाँ पे चेंज हुआ है। तो उससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ओके दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे टच हुआ है। सो इस टाइप ऑफ कैपेसिटिव स्क्रीन को जो बोलते हैं ना, इसको कहते हैं सरफेस कैपेसिटिव। एंड अगर इसकी वन लाइनर डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए, सो इट इज द टाइप ऑफ कैपेसिटिव स्क्रीन in which the sensors at corners detect the capacitance change. So you're going to write it as sensors at the corner, at the corner, at the corner. By the way, this is E. At the corner, detect the capacitance change. सही है। ये आपका हो गया जो सरफेस
कैपेसिटेंस चेंज। ओके, फिर एक आपके पास दूसरे टाइप ऑफ वो आता है कैपेसिटिव वाली, उसको कहते हैं प्रोजेक्टर, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इट इज नोन एज योर प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव स्क्रीन। सही है, प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव स्क्रीन। अब प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव क्या होती है? इट इज द वन जो मैंने आपको ऊपर बताया कि यार आपके एक्स वाई डायरेक्शन हर जगह में आपके कोई ना कोई इलेक्ट्रिक वो जा रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका एक्स वाई वाली स्क्रीन होता है, वो आपका डायरेक्टली डिटेक्ट कर देती है कि कहाँ किस पॉइंट के ऊपर आपका डिटेक्ट हुआ, मतलब कोई टच पॉइंट हुआ है। तो उसके अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन चाहिए हो कि यार व्हाट इज प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव, तो उसका आप लोग लिख लें कि एक्स वाई डायरेक्शन, आप इस तरह इसको लिख लें कि इट इज अ एक्स वाई ग्रिड दैट डिटेक्ट्स मल्टी टच, एक्स वाई ग्रिड that allows the detection, that allows multi touch detection। अब इसकी कहानी क्या है? वही जो ऊपर मैंने आप लोग को बताई है कि यार देखो इस तरह का कोई सीन होगा, इधर उधर सिग्नल्स जा रहे होंगे, मतलब सिग्नल्स तो नहीं है, इज मोर ऑफ कैपेसिटी। सही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिक वो है, फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जब वो ब्रेक करते हैं उसमें चेंज आते हैं, तो उसकी वजह से आपका टच पॉइंट होता है। और जो दूसरा वाला है सरफेस, उसके अंदर जहां आप टच करते हैं तो आपके हैंड से डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हर सेंसर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो उससे वो इवेलुएट करते हैं कि यार ये हमसे कितना दूर है, एंड उस पॉइंट को ये बेसिकली सीपीयू को बता देता है कि यार यहाँ पे टच हुआ है। दिस इज बेसिकली हाउ योर कैपेसिटिव टच स्क्रीन वर्क्स। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द कॉन्स ऑफ दिस टाइप? सो हम इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोस। सो प्रोस के अंदर जो आपका सबसे पहले बेनिफिट आता है ना, इट इज दैट आपको जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है ना, इसकी जो इमेज है दैट इज क्लियरर देन रेजिस्टिव। सो हम इसको लिख लेते हैं, क्लियर इमेज देन रेजिस्टिव टच स्क्रीन। रेजिस्टिव इज द अदर टाइप जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, क्लियर इमेज देन रेजिस्टिव टच स्क्रीन, वन बेनिफिट। अब आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई शुड वन बी गेटिंग अ कैपेसिटिव टच स्क्रीन रादर देन रेजिस्टिव? तो उसमें आपने ये प्रोज वाले पॉइंट्स लिखने हैं। सो ये चीजें ऐसे जिनको याद करना है। फिर आपको जो सेकंड एक बेनिफिट है कैपेसिटिव का, ये है कि इट इज ड्यूरेबल एंड इट इज स्क्रैच रेजिस्टेंट। सो इट इज ड्यूरेबल एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट। अब स्क्रैच रेजिस्टेंट क्यों है? इट इज स्क्रैच रेजिस्टेंट बिकॉज इसके ऊपर जो हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी, अगर आप लोग ऊपर देखें जस्ट अ मोमेंट, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इट इज ग्लास। तो ग्लास के ऊपर स्क्रैच लगना थोड़ा डिफिकल्ट है, आई गेस, दिस इज माय परसेप्शन। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज ऑल्सो अ बिट ऑफ स्क्रैच रेजिस्टेंट। सही, एंड दैट मेक्स इट अ बिट मोर ड्यूरेबल टू। एंड ऑल्सो वन अदर थिंग इज कि इसके अंदर जो आपका प्रोजेक्टिव टाइप है ना, प्रोजेक्टिव टाइप जो हमने सेकंड टाइप पढ़ी है ना, प्रोजेक्टिव टाइप, दिस वन, इट बेसिकली अलाउज मल्टी टच टू, अलाउज मल्टी टच। अब मल्टी टच किसे बोलते हैं? मल्टी टच ये मतलब है कि यार अगर मैं एक टाइम के ऊपर स्क्रीन के ऊपर दो पॉइंट्स पे क्लिक करूं ना, तो सीपीयू शुड एबल टू गेट बोथ ऑफ दीज टू पॉइंट्स एट वंस। आप यूजुअली इसको इस तरह ले ले, इफ एनीबॉडी ऑफ यू प्लेस क्लैश ऑफ क्लैंस, तो उसके अंदर आप ये देखो, आप दो ट्रूप्स को लेते हैं, यू कैन डिप्लॉय देम फ्रॉम टू पॉइंट्स। तो वो दो पॉइंट्स के ऊपर मतलब कंप्यूटर कैन एनालाइज बोथ ऑफ द टू पॉइंट्स, राइट? अगर वो सिर्फ एक पॉइंट को नोट करे तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि यार इट इज नॉट अ प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव, या इट इज अ सरफेस कैपेसिटिव, या इट इज सम अदर टाइप ऑफ टच स्क्रीन। अब ये तो तीन प्रोज हमने सीख ली। अब इसके बाद हमने कॉन्स भी देख लें कि यार इसको क्यों हमें नहीं लेना चाहिए। इसके जो एक चीज है ना, जो इसका एक बहुत बड़ा मसला है, इट इज कि यार इट ओनली द सरफेस टाइप ओनली वर्क्स विद बेयर फिंगर्स। सही है, जो आपका सरफेस टाइप है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा है सरफेस टाइप, दिस वन, द सरफेस कैपेसिटिव वाला। सही है, दिस सरफेस टाइप ओनली वर्क्स विद बेयर फिंगर। अब बेयर फिंगर से क्या क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर आप लोग में से कोई स्कर्दू जाए दिसंबर के अंदर जहाँ पे सही बर्फ लगी हो, एंड यू गाइस वेयर दोस ग्लव्स, सो ग्लव्स के ऊपर यूजुअली आई हैव सीन दिस, आई गेस उसके अंदर होता है कि जब आप ग्लव्स पहनते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर वो हाथ लगाए, वो नहीं रिकॉग्नाइज करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी स्क्रीन सपोर्ट ही नहीं करती, या इट ओनली वर्क्स, सो इट ओनली वर्क्स विद बेयर फिंगर्स, या फिर मे बी सम स्पेशल स्टाइलिस। What is the stylus? Stylus is this pencil, जो अभी ये वाला पेन है ना जिससे मैं क्लास में लिख रहा हूँ, this is basically a stylus. This अभी जो नोट सीरीज आती है, सैमसंग की नोट सीरीज, उसके अंदर there is a built-in pen in the phone, right? So that's a stylus. उसको स्टाइलिस बोलते हैं। तो जो आपका कौन इसका है ना, वो सबसे बड़ा ये कि यार अगर आप ग्लव्स या कोई ऐसी चीज पहन लेना तो उसके साथ इसने काम नहीं करना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड उसके बाद एक और मसला भी है, इट इज सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये लिख लो तो फिर आपको मैं बता दूं इसका क्या मतलब। सेंसिटिव
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब हमें तो पता है ना कि इट यूजेस चार्जेस, राइट? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्जेस की चेंजेस से वो डिटेक्ट करते हैं। सो इफ यू गो टू सम प्लेस, इफ यू गो टू सम पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो बार बार, maybe some powerhouse or something like that, तो वहां पे अगर जहां पे ये चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हो, अगर आप ऐसे किसी पॉइंट के ऊपर जाते हैं एंड वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज हो रही हो, तो आपका फोन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट इज ऑपरेटिंग ऑन द मैनर जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस हो रही हो, तो उसकी वजह से आपका स्क्रीन बार बार टच को डिटेक्ट करेगा, इवन तो आप टच नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो आपका खुद ब खुद फोन टच को डिटेक्ट कर रहा होगा। सो दैट इज वन कॉन कि यार इट इज वेरी मच सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। नाउ ये दो प्रोज है, दो कॉन्स है, ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड टाइप। सही, जो सेकंड चीज है ना, इट इज बेसिकली नोन एज द इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। रेड टेक्नोलॉजी। नाउ द वर्ड इंफ्रारेड इज समथिंग जो कि आप लोगों ने पहले काफी सुना होगा। आप लोगों ने इसको रिमोट्स के अंदर सुना होगा, जो रिमोट से आप वो करते हैं इंफ्रारेड सिग्नल्स वगैरह वगैरह वगैरह। इंफ्रारेड में होता ही है कि इसके अंदर ना आपके इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स एंड सेंसर्स आर यूज्ड अराउंड द स्क्रीन। सो इट इज जस्ट लाइक प्रीवियस वन। आपका इस तरह फोन है ना, यहाँ पे होते हैं सेंसर्स, सही है, एंड यहाँ पे होते हैं ट्रांसमीटर्स। तो आपके बेसिकली ये ट्रांसमिट कर रहे होते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंड जस्ट लाइक दैट शायद इस साइड पे भी हो, डिपेंड ऑन द कंपनी, सही है। तो आपके इस तरह इंफ्रारेड वो सिग्नल्स जो आते हैं एंड यहाँ पे सेंसर्स होते हैं विच डिटेक्ट्स कि यार इंफ्रारेड कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है। सो इफ आई टच दिस पॉइंट तो डेफिनेटली इंफ्रारेड रेज आर ब्रोकन, राइट? इट कैन नॉट पास थ्रू माई स्किन। सो द सेंसर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कि यार देयर हैज बीन अ ब्रेकेज ऑफ द इंफ्रारेड रेज। तो उस कॉन्टेक्स्ट में टेल्स द सीपीयू कि यार इस पॉइंट के ऊपर देयर हैज बीन अ टच। So that is how basically your infrared technology works. अगर इसके मैं आपको quickly definition से बताऊं या how it works का एक process बताऊं, तो it is like infrared transmitters and sensors are used कहाँ पे? अराउंड द होल डिवाइस, सही है। एंड अराउंड यूजुअली जो इनके सेंसर ये चीजें है ना, ये आपकी यूज होती है अराउंड कहाँ? स्क्रीन एजेस। तो हमारे एजेस के ऊपर मोस्टली यूज होते हैं, तो हम बोल देते हैं अराउंड स्क्रीन एजेस। तो इसका काम क्या होता है? इट हैज टू इंश्योर कि यार आपका इंफ्रारेड ट्रांसमिट भी हो एंड उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई सेंसर भी आपके पास एग्जिस्ट करे। फिर एक दफा जब वो चीजें हो जाए तो उसके बाद व्हेन यू ब्रेक इट, व्हेन यू लाइक पुट अ फिंगर ऑन टू द स्क्रीन, इट ब्रेक्स द इंफ्रारेड बीम्स। सो पुटिंग a finger breaks what? It breaks the infrared radiation, right? So infrared radiation is basically broken. And once आपकी ये चीज ब्रेक हो जाती है, उस कॉन्टेक्स्ट में what happens is that your computer, इसके बाद हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, the processor, whatever the microcontroller it is या whatever thing it is, the processor then calculates the direction, calculates the point of touch, सही है। तो यही सेंसर्स थैंक्स टू दिस सेंसर पॉइंट ऑफ टच, थैंक्स टू दिस सेंसर, वो सेंसर्स बता देते कि यार इट इज इतना कुछ दूर फ्रॉम मी। तो आपका प्रोसेसर बेसिकली उससे आपके डायरेक्ट डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार एक्स वाई में ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ओके दिस इज द पॉइंट, इसके नीचे कौन सी ऐप है उसको ओपन कर दो। सो दिस इज हाउ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी बेसिकली वर्क्स। नो, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के प्रोस क्या हैं एंड कॉन्स क्या हैं? नाउ दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। इन दोज ओल्ड एग्जाम्स आपको शायद अगर टीचर स्कूल्स में बताएं भी, you used to memorize all this कि what's the difference between infrared and capacitance। तो उसके अंदर हम बताते थे कि यार one uses infrared technology, other has electromagnetic capacitance वाली कहानी वगैरह वगैरह। अभी आपको मोस्टली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपको ये प्रोज एंड कॉन्स का पता होना चाहिए, कहाँ पे हमें कौन सी यूज करनी चाहिए। लाइक अब एग्जाम में क्वेश्चन शायद आ जाए कि a person, Rayan, is trying to get a screen for his computer and होना ये है कि Rayan basically needs something जिसके अंदर a multi-touch is supported. So he's planning on getting a resistive one. So should he buy this or not? Now resistive does not allow multi-touch. When it does not allow multi-touch, तो Rayan ने आंसर में लिखना है no. Why? Because resistive does not support multi-touch. He should rather go with infrared. क्योंकि infrared की जो सबसे बड़ी pro point है, it is कि it allows multi-touch. Okay.
all of it has no multiple subfields. It is a singular. जैसे हमने ऊपर दो टाइप्स आगे पढ़ी थी, इसके एक ही टाइप है, and that is infrared, and it allows multi-touch. यार मल्टी टच बेसिकली मींस, आपने क्लैश ऑफ क्लैंस खेली है रे यार? आप मुझे ये बताओ, आपने क्लैश ऑफ क्लैंस खेली है या क्लैश रॉयल खेली है आपने? अच्छा नहीं खेली। अच्छा, मल्टी टच इसको आप इस तरह ले लो कि मल्टी टच अलाउस कि आप स्क्रीन के ऊपर एक टाइम में दो जगह फिंगर्स प्लेस करो ना, तो आपके दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या कहते हैं या फिर अच्छा हिल क्लाइंब खेलिए, हिल क्लाइंब रेसिंग तो खेली होगी, हिल क्लाइंब रेसिंग खेलिए, या फिर डॉक्टर ड्राइविंग। यस, अब उसके अंदर होता ही ये था कि आपकी ये स्क्रीन है ना, यहाँ पर आपके पास होता था एक्सेलरेटर का पेडल, राइट? हाँ, डॉक्टर ड्राइविंग के लिए तो यहाँ पे होता था आपके पास एक्सेलरेटर का पेडल, यहाँ पे आपके पास होती थी ब्रेक्स। नंबर मल्टी टच बेसिकली मींस कि यार अगर आप एक टाइम के ऊपर पेडल भी दबाओ एंड ब्रेक भी दबाओ, तो उस सूरत में आपकी गाड़ी आगे तो चलती थी, बट इट यूज्ड टू स्लो डाउन। So हुआ क्या? It is basically you are touching at this point and you are also touching at this point. So this basically means multi-touch के यार आप दो पॉइंट्स के ऊपर भी अगर एक साथ टच कर लो ना, तो योर कंप्यूटर कैन गेट कि यार यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है। जहां पे मल्टी टच सपोर्ट ना हो रहा हो ना, उसका मतलब ये कि अगर आपने पेडल के ऊपर टच किया हुआ इस पॉइंट के ऊपर, फिर इवन अगर आप हाथ ब्रेक वाले पॉइंट पे रखते जाए, until or unless you don't take your fingers off the pedal of accelerator, आपके ये वाला टच बिल्कुल रिकॉग्नाइज होगा ही नहीं। So this basically means आपका what do we call it, multi touch. So multi touch allows touching your screen at multiple points at once, सही? So it allows multi touch, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रो पॉइंट है। उसके बगैर इसमें एक और ये प्लस पॉइंट भी है कि यार इट वर्क्स इवन इफ द स्क्रीन इज स्क्रैच्ड, वर्क्स इवन if the screen is scratched or cracked. क्यों? क्योंकि यार इसमें होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडिएशन जहां ब्रेक हुई उसके नीचे जो चीज हो वो चल जाएगी। तो इस वजह से इवन इफ द स्क्रीन इज स्क्रैच्ड, या फिर आपके कोई इस तरह की कहानी हो कि यार इट इज क्रैक्ड, नॉट इस तरह क्रैक के बहुत ही बेड़ा गर्क हो, लेकिन अगर थोड़ी सी क्रैक्ड हो तो इट इवन वर्क्स एट दैट सिनेरियो, व्हिच बेसिकली इंश्योर्स कि दिस इज ड्यूरेबल। सो इसका एक प्रो पॉइंट ये भी है कि इट इज ड्यूरेबल जस्ट लाइक ऊपर वाली। तो ये आप डिपेंड्स ऑन द यूजर कि यार उसको कौन सी स्क्रीन चाहिए ना। ये तो हमारे पास प्रोज हो गए, अब हमने कॉन्स को डिस्कस करने कि यार नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, यार क्या इसके वो है। क्योंकि इट इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू वाटर एंड मॉइस्चर, तो इस वजह से इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इट इज वेरी मच सेंसिटिव टू वाटर, या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो इन द सराउंडिंग, तो अच्छा अब मॉइस्चर का ये, अब मजे की बात सुन लो। Now my iPhone, if I'm not wrong, it should be having an infrared one. Let me confirm it. Does iPhone have have an infrared touch screen? Let me confirm it, right? So, okay, iPhone utilize capacitive touch screen. Okay, by the way, if you guys want to know. लेकिन इसमें एक सीन होता है, समटाइम्स इट हैपेंस इसकी यार आप किसी ऐसी जगह में हो ना जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इवन अगर आप इस तरह हाथ लगाते चाहे ना, इट्स नॉट गोना कैप्चर दैट। व्हाई? क्योंकि उसके अंदर आपको या उसको इस तरह शर्ट से वो करना होता है ह्यूमिडिटी, या जो उसके ऊपर फॉग से आई होती है उसको हटाना होता है, वरना इसको ये नहीं चलती। तो सेम पॉइंट यहाँ पे भी है कि आपका जो इंफ्रारेड वाली चीज है ना, दैट इज वेरी मच सेंसिटिव टू वाटर एंड मॉइस्चर। अगर थोड़ी सी भी स्क्रीन के ऊपर वाटर या मॉइस्चर आ गई ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट्स नॉट गोना वर्क। ग्रेट सैफुल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा किए। नाउ बिल्कुल स्मार्ट वॉचेस के साथ अगर होता है तो ये वाली जो सीन है, इस पॉइंट का ये मतलब है कि ये सेंसिटिव इस कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, सही। नाउ आफ्टर दैट, ओके ग्रेट सैफुल्लाह। नाउ उसके बाद आपको जो इसका एक और मसला है ना, एक ये है कि यार इसमें ना एक्सीडेंटल टचेस हो सकती है, एक्सीडेंटल टचेस। अब व्हाट डू आई मीन बाय एक्सीडेंटल टचेस? यार देखो, इट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडिएशन जा रही है, रेडिएशन जहां ब्रेक हुई तो ओके परफेक्ट, आप बस रात तक इंशाल्लाह हो जाए, बिल्कुल कोई कोई मसला नहीं, आप कल भी कर सकते हैं, बस कल से पहले हो जाए तो इट विल बी ग्रेट। ओके, सो एक्सीडेंटल टचेस को प्रिवेंट, एक्सीडेंटल टचेस क्या होते हैं? इट इज लाइक आप देखो यार रेडिएशन है ना, द मोमेंट मे बी इफ आई एम लाइक प्लेइंग फुटबॉल, maybe we are playing football, maybe let's say for instance we are playing football, and वो फुटबॉल में भी मेरे फोन के साथ बिल्कुल ही करीब से चला जाए, बहुत करीब से पास आउट करे, तो उसकी वजह से शायद वो बीम डिस्टर्ब हो जाए, एंड उसकी वजह से इवन दो आई डिड नॉट वांट टू टच इट, देयर इज एन एक्सीडेंटल टच, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, अगर आपकी बीम्स आर डिस्टर्ब, इफ बीम्स आर डिस्टर्ब, तो लाइक अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ एंड आपने गलती से
बॉल मेरे करीब से गया एंड दोस बीम्स आर डिस्टर्ब, तो एक्सीडेंटल टच हो गया, आपकी ऐप खुल गई या कोई इस तरह का सीन। सो इसका एक ये मसला भी है। एंड इसके बगैर एक थर्ड जो इसका मसला है ना, इसमें ये आता है कि क्योंकि इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के थोड़ा लाइट के साथ जब इंटरफेरेंस होती है ना, तो इट कैन कॉज इश्यूज। तो इसका जो एक थर्ड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग का नहीं पता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट इंटरफेरेंस कैन कॉज इश्यूज। एक आपके पास ये थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन ये भी है कि यार अगर आपके पास लाइट इंटरफेरेंस हो तो उससे मसले हो सकते हैं। नाउ वी आर डन विद इंफ्रारेड, वी आर डन विद कैपेसिटिव। आपको प्रोस कॉन्स का पता हो, थोड़ा सा ये ओवरव्यू पता हो, आई विल रिकमेंड कि यार इसको याद कर लो यहाँ पे तो बेहतर है। याद एज इन कि यार आपको समझ आए तो बेहतर है, सही है, कि इंफ्रारेड और कैपेसिटेंस में मेन डिफरेंस क्या है, तो आपको ये पता हो तो यू आर गुड टू गो। एंड नाउ आई नो इट्स 5:32, लेकिन आई हैव टू quickly do the resistive one. So yeah, it's gonna take just like maybe 4 to 5 minutes, inshallah. And now the last one is basically your resistive technology. Resistive technology के अंदर क्या होता है? Technology. How does it work? Let me first of all explain that. इसके अंदर होता ही है ना कि आपके पास दो स्क्रीन्स लगी होती है, दो रेजिस्टिव लेयर्स होती है। तो जब आप एक को टच करते हैं ना, वो आपके वोल्टेज चेंज आ जाता है क्योंकि आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, एंड उसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे टच हुआ है। सो इफ आई मेक अ डायग्राम, इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस। आपके एक यहाँ पे होती है स्क्रीन, एक आपकी यहाँ पे स्क्रीन होती है, सही है। सो इफ आई वांट टू लेट्स से टच दिस पॉइंट, सो व्हेन आई टच दिस पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रेशर डालता हूँ, तो यहाँ पे तो अभी गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, प्रेशर डालता हूँ, तो दिस बेसिकली गेट टचेस विद दिस। सो व्हेन इट गेट टचेस विद दिस, इट इज मोर ऑफ लाइक आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड देयर इज अ चेंज इन वोल्टेज, सही। सो योर वोल्टेज changes, and the moment your voltage changes, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर जो सीपीयू लगा होगा जो भी है, इट इज गोना डिटेक्ट कि ओके यार दिस हैज बीन डन एट दिस पॉइंट, यहाँ पे वोल्टेज चेंज हुआ है, सो इसके ऊपर जो भी इस पॉइंट के ऊपर आपका ऐप हुआ उसको ओपन कर देगा। सो दिस इज हाउ योर रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी वर्क। एंड आई पर्सनली यूज टू लव रेजिस्टिव वाला, क्योंकि उसके जो लॉजिक है ना, इट इज वेरी वेरी इजी कि यार आपका क्या है, दो रेजिस्टिव कोटेड लेयर्स है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टू रेजिस्टिव कोटेड लेयर्स, सही है, विच हैव अ गैप बिटवीन देम। तो आपकी उसके दरमियान थोड़ा सा गैप होता है, विच इज बेसिकली सेपरेटेड, सो दैट इज सेपरेटेड बाय आइदर सम गैस, separated by some gas or maybe even air. So आप इसके थ्रू इसको सेपरेट करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, एंड फिर the moment we touch it, उसके ऊपर क्या होता है, प्रेसिंग से ये होता है कि the moment you press it, आपकी स्क्रीन के ऊपर बेसिकली हो जाता है कि देयर इज अ चेंज इन वोल्टेज। सो आपका एक वोल्टेज चेंज हो जाता है, बिकॉज यूजुअली आपका सर्किट कंप्लीट हो जाती है, या कोई ये वोल्टेज चेंज ड्यू टू सर्किट कंप्लीशन, राइट। तो आप लोग इसको इस तरह याद कर ले तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो आपका जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है, या वट एवर द रीजन इज, आप बस मेन पॉइंट ये है कि वोल्टेज कंप्लीशन, वोल्टेज चेंज हो जाती है। सो व्हेन द वोल्टेज चेंजेस, आपके उसके बाद सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर, द प्रोसेसर डिटेक्ट्स द पॉइंट, processor detects the point. So ये आपके resistive technology का basically जो working है, that is basically done in this manner. Main point, voltage change. सही है, that is very very important. Now the last thing about resistive technology, we just need to have a look at the pros and the cons. So when discussing the pros, आपको सबसे पहली बात इसमें पता होनी चाहिए कि यार जो आपकी resistive technology है ना, it works with fingers, it works with a stylus, and it can also work with gloves. So it works with every possible वे और मेथड, वट एवर क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, या जो भी आपका मेथड है, तो उसके साथ ये कर सकते हो। इट वर्क्स विद बेयर फिंगर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक अगर आप यूजुअली किसी ऐसी जगह में जहाँ पे स्नो मोस्टली आपने ग्लव्स पहने हो, तो इट्स बेटर टू गो विद रेजिस्टिव, क्योंकि इट वर्क्स विद बेयर फिंगर्स, इट वर्क्स विद अ स्टाइलस, एंड इट आल्सो वर्क्स विद ग्लव्स। सो इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सही है। नो मल्टी टच, दैट इज नॉट अ प्रो, दैट इज अ कॉन, क्योंकि मल्टी टच इज समथिंग दैट इज प्रेफर्ड, राइट। सो उसको हम कॉन्स में हम डिस्कस करेंगे। प्रोज में एक और इसकी जो बेनिफिट आता है, दैट इज बेसिकली इट इज गुड वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। सो हम इसको ये भी लिख लेते हैं, इट इज गुड डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, वाटर resistant. And apparently my iPhone got dead, so yes, अब मैंने यहाँ से ही करना है जल्दी जल्दी। so water resistant है, वो dust resistant है, एक इसका ये प्लस पॉइंट है। इसके बगैर जो इसके कॉन्स आते हैं ना, so the biggest con is the one जो रियान ने अभी सबसे पहले मेंशन किया कि no multi touch support,
सो आप इसके ऊपर मल्टी टच नहीं कर सकते, सही है। तो इसका मतलब है वी वांट स्क्रीन जिसके ऊपर मैं ग्लव्स के साथ भी यूज कर सकूं, तो उसका सबसे बड़ा मेरे पास मसला ये होगा कि यार मल्टी टच नहीं होगी। फिर उसके बगैर इसमें जो दूसरा बड़ा मसला है ना, वो ये कि यार इसके अंदर the sensitivity basically is pretty much very low, so it has, you have to literally press it very harder, so it has a low sensitivity. Why do I need to press it harder? Because definitely यार सेंसिटिविटी इसके अंदर सीन ये है कि आपको पता है कि दो लेयर्स है, उन लेयर्स को जब तक हम टच ना करें, यार क्या करो, जब तक वो टच ना हो तो तब तक इसका कोई सीन नहीं होगा, तो इसलिए यू नीड टू प्रेस इट अ बिट हार्डर। सो ये आपका लोअर सेंसिटिविटी वाली बात आ गई इसके अंदर। फिर इसके बाद इसमें एक और पॉइंट जो आता है ना, वो ये है कि यार इट हैज अ पुअर डिस्प्ले इन सनलाइट। सो पुअर डिस्प्ले इन ब्राइट सनलाइट, इन ब्राइट सनलाइट। So ये इसका एक और कौन आ सकता है कि यार जब आपकी सनलाइट बहुत ज्यादा हो, लाइक यूजुअली आप लोग बाहर जाते हैं तो सनलाइट में वो उस तरीके से नहीं चलता, तो ये भी इसका प्रॉब्लम है। जो इसका लास्ट लास्ट इशू आता है ना, द बिगेस्ट इशू, वो बेसिकली ये है क्योंकि जो हमने ऊपर ये जो कोटेड लेयर्स होती है ना, टू रेजिस्टिव कोटेड लेयर, दीज आर बेसिकली प्लास्टिक, ओके, these are basically plastic coated layers. I will confirm it again, just a moment, मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ। यार हाँ, ये देखो, इट इज मेड अप ऑफ polyethylene. So polyethylene is a type of polymer. So is polymer plastic, I guess it is. Yes, polymer plastics are basically a type of polymer. So हम ये बोल सकते हैं कि it is basically a type of plastic. And जब कोई चीज प्लास्टिक की हो ना, तो उसके ऊपर स्क्रैचेस बड़ी इजीली पड़ सकते हैं। सो हम ये इसका लास्ट पॉइंट ये कर लेते हैं कि यार इट कैन स्क्रैच इजीली, सो इसके ऊपर इजीली स्क्रैचेस आ सकते हैं। So these are basically the three type of technologies. This is the resistive one which we discussed in great detail. Then आपके पास आते हैं infrared technology जिसके अंदर आपकी ये वाली कहानी सारी डिस्कस है। then आपके पास capacitance वाली आती है, capacitance जिसके अंदर उसकी working दो types हमने पढ़ लिया, pros and cons, alongside all the other input devices which we studied today. So this marks the end of your input devices. Inshallah tomorrow we are going to be starting off with output devices, and that is all for today. I'm ending the recording right now, and with that, you guys can leave.